after this slide we have the multi-threading concept. So before going to the multi-threading concept, first we will see the execution of these programs. Okay, so those programs I have already save here. I have just removed all these classes. Before that I have just made a video, but it is not working. So again, once again I need to, I'm creating, so there is so much of redundancy is going on. Right, anyhow, now the first two programs here we have the thread 1, okay, and the second program is thread 2. So this program we have created a thread okay, using by extending a thread class, and this thread is created by implementing the runnable interface. So we will see first this program. Okay, so the program is here, thread 1, open in a notepad. So meanwhile I will open the CMD. In a E drive, CD space thread CLS Java C thread1.java. Now Java space thread1. Now this is the output of the program. Now you can see the output also. I am a thread, a small dispatchable code. I am a thread, a small dispatchable code. This thread is created by extending a thread class. तो यहाँ पर आप देख सकते हो thread class को extend करके ये thread बनाया गया है. ठीक है. अब दूसरा प्रोग्राम हम देखेंगे जो कि by implementing the runnable interface है. ओके, यहाँ पर by implementing the runnable interface. Let's compile and execute this program. thread2.java thread2. So I have compiled successfully. Now I am executing this program. Okay, you can see the output here. So you can create in both way using this technique और using दोनों भी थ्रेड एक जैसे ही होते हैं, इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है, टेक्निक अलग अलग है. वो टेक्निक क्यों अलग है उसका मैं रीज़न भी आपको बताया हूँ. अगर आपकी क्लास जो ऑलरेडी एक क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो आप फिर उसमें थ्रेड भी अगर बनाना चाह रहे हो तो दो क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो. तो वो सूरत हाल में आप इम्प्लीमेंट के ज़रिए आप थ्रेड बना सकते हो. ठीक है, ये एक मेजर इसका रीज़न है. ठीक है, excuse me. Meanwhile I will check whether the recording is going on or not. Okay, now the third program is here. The class thread3 extends, means we are using by extending a thread class. This is also okay. In this program what we are doing here, let's see in a notepad, thread3 I think, this one. Okay, so in this program what we are doing, we are just we are printing 1 to 10 or 0 to 10 in a run method. तो आपका थ्रेड यहाँ से स्टार्ट होता है. जैसा स्टार्ट मेथड आप कॉल करेंगे इंटरनली वो रन मेथड को कॉल होता है. ठीक है, रन मेथड जब इंटरनली कॉल होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 अप टू 10. Okay, so we will execute this program, Java C thread3.java thread3. So I have compiled and I have executed. So what happening here, it is printing directly 0 1 to 10. So if you want to give some interval of time, you can use this sleep method.
स्लीप मेथड क्या करेगा, जब 0 प्रिंट करेगा तो हाफ सेकेंड के लिए वो स्लीप मोड में चले जाएगा. स्लीप इज अ मेथड विच इज यूज टू मूव योर थ्रेड इन ए ब्लॉक स्टेट और वेटिंग स्टेट फॉर मिली सेकेंड. ये दिस विल टेक ए इंटीजर पैरामीटर लेता है और मिली सेकेंड में रहेगा. 500 मिली सेकेंड मीन्स हाफ सेकेंड. Okay, if you have given 1000 millisecond, it will go for 1 second. Okay, तो वो 0 प्रिंट करेगा, हाफ सेकेंड के लिए रुक जाएगा. Let's see and check this program using the sleep method thread4.java. Next, Java thread4. Now you can see here 0 1 2 3. So for after printing every value, it is going for the sleep method, then it is coming. So this is how we are getting the threads, and we have used the sleep method also in this, that we have already discussed in a content that meanwhile we are going to learn some thread methods also. Okay, so one of the method that is, and we also learned the get name method also. Okay, get name, how do we fetch the name. ठीक है. सो यहाँ पर ये प्रोग्राम हमने प्रैक्टिस में करना था, जो हमने कर चुकी है. अब आइए मल्टी थ्रेडिंग में. मल्टी थ्रेडिंग इन द सेंस मोर देन वन फ्लो ऑफ कंट्रोल्स. ओके, और मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल्स. सो एक से कई ज़्यादा अगर थ्रेड एक प्रोग्राम में है तो उसको मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कहते हैं. सो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव ए 2 थ्रेड मींस वी नीड टू क्रिएट द 2 डिफरेंट थ्रेड ऑब्जेक्ट्स. 2 अलग अलग थ्रेड ऑब्जेक्ट्स के जरिए जब आप बनाते हो तो वो 2 अलग अलग थ्रेड वो कहलाते हैं. तो जब कई सारे थ्रेड्स आपके क्रिएट किए हुए एक ही प्रोग्राम के अंदर, और वो एक ही रिसोर्स यानी एक ही रिसोर्स से मुराद एक ही रन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो वो प्रॉब्लम्स को हमें हैंडल करना चाहिए. वो हैंडल करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन मेथड और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए वो आपके जो ब्लॉक होता है, ठीक है, रिसोर्स ब्लॉक होता है, उसे वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, लॉक कर देता है, जब तक कि वो एक थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड को कंप्लीट ना कर दे एग्जीक्यूशन, जब तक दूसरा वो थ्रेड उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाता है. तो ये सिक्योरिटी और कंसिस्टेंसी के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. So a technique by which a single set of code can be used by several processes at the different stages of execution. A program that contains multiple flow of control is known as multiple flow of control. Each flow of control is known as, in a program, is known as thread. So multiple flow of control means multiple threads. So what is multitasking? Multitasking is a method where multiple tasks are performed during the same period of time. They are executed concurrently instead of sequentially. The tasks share common processor in the CPU. देखिए, मल्टीटास्किंग का सिंपल एक ही मतलब होता है. जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें आप कई सारे मल्टीटास्क कर रहे हो एक ही वक्त में. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, पीपीटी पावर पॉइंट आपका खुला हुआ है, इन द सेम वे मीनवाइल आपका वहाँ पर जीमेल खुला हुआ है, जीमेल पे मैसेजेस आ रहे हैं, मीनवाइल आप वेब व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे वो मैसेजेस आ रहे हैं, चार्ट्स चल रही है, और कई सारे वीडियोस आप डाउनलोड कर रहे हो, डाउनलोडिंग भी चल रही है. तो कई सारे आप काम एक ही साथ कर रहे हो. ठीक है, साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो. ठीक है, सीक्वेंशियली नहीं, साइमल्टेनियसली, कंकरेंटली और साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपकी सीपीयू की स्पीड और मेमोरी की स्पीड से आप अपना काम को मुकम्मल कर सकते हो. तो अब मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है. देखिए, मल्टीटास्किंग क्या है, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग में क्या है, एक ही प्रोग्राम होता है और उसमें उसके कई सारे हिस्से होते हैं. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ऊपर देखिए, एन एबिलिटी टू रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, एन एबिलिटी टू रन सेवरल प्रोसेसेस ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. यानी प्रोसेसेस यानी एक ही प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को हम लाइट वेट प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं. तो कई सारे सब प्रोसेसेस में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और ईच सब प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ए सिंगल थ्रेड. तो कई सारे सब प्रोसेसेस मीन्स कई सारे थ्रेड्स हो जाते हैं, साइमल्टेनियसली वो रन करते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो, मेन थ्रेड है, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3. तो साइमल्टेनियसली वो रन कर रहे हैं. थ्रेड 1 रन हो रहा है, थ्रेड 2 भी हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है. स्विचिंग करते देखिए अक्सर हम, जैसे कि मैं यहाँ पर स्विचिंग कर रहा हूँ, एक यहाँ से ये स्विचिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड